नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी बड़ी मदद होती है, चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक व्यूज़ और न्यूज़ जाएं। सबसे पहले स्टेट बैंक की बात करते हैं, और उससे पहले मैं आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर करता हूँ 8588898205 8588898205। राजेश कुमार त्यागी। कोई भी आप मुझसे सहयोग ले सकते हैं, और कुछ भी सहयोग आप मुझे देना चाहें तो कर भी सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में रहती हैं। ये उमेश शर्मा GOP स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4 अप्रैल का मैसेज है आज का। डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। पेमेंट ऑफ एक्सक्रेशिया इन SBI गवर्नमेंट डिलेड एंड मे बी पेड अलोंग विद अप्रैल 24 पेंशन। तो SBI के यहाँ जो एक्सक्रेशिया का है वो लेट हो गया। मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, जगह जगह से, और मैं उनको बताया भी है। तो ये अप्रैल की पेंशन के साथ मिल सकता है। वो कहते हैं आई अंडरस्टैंड रीजन्स फॉर डिले आर, जो नीचे दे रखे हैं। नंबर 1, सॉफ्टवेयर फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन अलाउज ए पेमेंट इन ए मंथ सो इट कैन नॉट बी पेड सेपरेटली। महीने में एक ही बार सॉफ्टवेयर अलाउ करता है पेमेंट करने के लिए। नंबर 2, बैंक हैज़ sought clarification from IBA relating to inclusion of stagnation increment. Number 3, in SBI decision to pay uniform pension has been implemented as from 10th November 23, while ex gratia is to be paid as on 31st October 22. Bank has sought clarification since this would create anomaly vis a vis NBs. इसको दोबारा भी एक बार सुन लीजिए। In SBI decision to pay uniform pension has been implemented as from 10th November 23, while ex gratia is to be paid as on 31 October 22. Bank has sought clarification since this would create anomaly vis a vis NBs. Number 4, I feel the delay would get us a little more benefit. Please bear and have patience for few weeks more. ये इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं उमेश शर्मा GOP स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो स्टेट बैंक की न्यूज़ थी साथियों। एक सेंट्रल बैंक जो AICBROF है, यूनियन है AIBRF की एफिलिएट, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है। टू ऑल यूनिट्स जनरल सेक्रेटरीज, डियर फ्रेंड्स, रिलीज ऑफ एरियर्स, ये सेंट्रल बैंक के लिए है। रिलीज ऑफ एरियर्स ऑफ एडिशनल स्टेगनेशन इंक्रीमेंट टू ऑफिसर्स रिटायर्ड फ्रॉम 1 November 17 to 31 October 28 joint note dated 11 November 20. After protracted follow-up by our Federation Retirement Benefits Department Central Office issued circular number HCM RBD 953 dated 27 February 24 containing following instructions to JADO and ROs. Number 1 कह रहा है in all 157 retirees officers were identified by RBD for payment of arrears of stagnation increment as per IBA clarification dated 25 April 23 for Chennai and Delhi zone. Exercise was yet to be finalized. Number 2, RBD had directly credited the amount of arrears of pension and commutation in the accounts of the above retirees on 1 March 24. Third, difference in gratuity amount, if any, had been sent to ROs and JADOs for onward credit in the accounts of the pensioners after obtaining receipts. Number 4, the payment of arrears of salary and leave encashment was to be released by respective JADO RO CSDs.
As the areas of stagnation increment to the eligible officers in Delhi and Chennai zone were kept pending, the matter was pursued by our units, federation with concerned ROs and ZOs and central office. It was assured by RBD that after payment of arrears of ex gratia and pension of March 24, the matter will be attended to on priority. We are happy to inform that central office has since afforded credit of arrears of pension and commutation in the accounts of the eligible retired officers of Delhi and Chennai zone. The amount of difference of gratuity, salary and leave encashment will be paid by respective ROs and DOs. We request our unit general secretaries to please ensure that ZOs and ROs effect the payment of arrears of gratuity, stagnation, increment and leave encashment to the eligible retired officers in time. We hope that arrears of stagnation, increment, salary and leave encashment has been paid to the eligible members at other centers. Regards N.K. Parikh, जनरल सेक्रेटरी AICBROF। तो एक ये था मैसेज साथियों। इसके अलावा मैं एक आपको अभी और बताता हूँ पढ़ करके, CN वेणुगोपाल का है। और इसके अलावा एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आजकल लेवी का बड़ा चल रहा है। लेवी काटो 5% लेवी हमारी यूनियन कह रही है कि काट लो। AICBRF तो हम भी लेवी का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना तो जो वर्किंग स्टाफ है उसे लेवी देनी चाहिए, और रिटायरीज का तो कोई मतलब ही नहीं। ना तो पेंशन अपडेशन हुआ, रिटायरीज को क्या मिला है, एक्स ग्रेशिया, वो तो हमारी डिमांड को कमज़ोर करने के लिए दिया है इन्होंने। तो कोई लेवी का मतलब नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और हम तो कोई देंगे नहीं लेवी, और सबका हमने अलग जगह रखी है। और दूसरा जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं हम उनका विरोध करते हैं। खासतौर से कैनरा बैंक ने जो है ऐसे ही काट ली लेवी बिना ऑथोरिटी लेटर के, और भी 1-2 बैंक ने काटी है, और PNB ने शायद नहीं काटी है अभी तो। और जिन्होंने नहीं काटी उनका हम समर्थन करते हैं, और जो काट रहे हैं जिन्होंने काटी है उनका विरोध करते हैं। और हमने चिट्ठी भी लिखी है डॉक्टर विवेक जोशी को, फाइनेंस सेक्रेटरी, और दूसरे लोगों को भी, कि भाई इसे वापस करें विद 9% इंटरेस्ट। तो ये भी है। और एक और निवेदन है आपसे कि अगर आप लेवी यहाँ दें, ये गलत है। रिटायरीज को कोई लेवी नहीं देनी किसी को। इससे अच्छा आप अपने एक्टिविस्ट साथियों को थोड़ा बहुत जो आप दे सकते हैं हेल्प करें, वो आपके लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। इस वक्त भी रात के 12 से ऊपर हो रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, और दिन और रात करते हैं, और भी लोग करते हैं। तो रिटायरी अपने एक्टिविस्ट साथियों को आप दें, वो आपकी हर दफ़ा करते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं। तो साथियों ये है। और बाकी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। राजेश कुमार त्यागी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।